I'll start now. Yesterday we have seen the simple harmonic motion, that motion in which force is directly proportional to displacement and also both are in opposite direction. This is the condition of simple harmonic motion in which force or acceleration are directly proportional to displacement and both are in opposite direction, and therefore F is equal to minus kx, and the force restoring force, F is the restoring force, displacement हमेशा mean position से लेंगे, restoring force will be opposite in any case. यहाँ पर जब आ जाएगा ऑब्जेक्ट तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा, फोर्स इधर लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग का ऑलवेज अपोजिट रहेगा, ऑलवेज एफ एंड एक्स का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, अपोजिट एंगल मींस cos 180 मींस माइनस, है ना. इफ आई राइट हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डॉट x, ऑलवेज नेगेटिव. ऑप्शंस दिया होगा ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, always zero, or it depends upon the situation. It is always negative because opposite है always. Displacement and force हमेशा opposite रहेंगे. And cos 180 is minus 1. And SHM is also represented by sine function, cosine function, and combinations of both. And this we have seen simple harmonic motion. These are the conditions. And it is periodic motion also that we were proving. हम लोग periodic motion prove कर रहे थे. तो जैसे equations हमने लिखा, it can be sine equation or cosine equation. X is the displacement depending upon time, A is the amplitude, omega is the angular frequency, and इस ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, phase time dependent होता है वो, and phi is the initial phase constant or initial phase. Some books write epoch. ये word I don't know how they use it, but they use it. Initial phase. यहाँ पे देखो t is equal to 0 put कर दो. Initial का मतलब t 0 होता है तो we get phi. That is the initial phase. Otherwise it is phase. तो periodic का हम discuss कर रहे थे, उस समय disconnect हुए थे हम लोग. Let phi is 0. इसमें phi 0 मान लो, sin का function या cosine का, तो it will be x is equal to a sin omega t, है ना. x is equal to, यहाँ पे हम सिंपल वर्ड भी, सिंपल सिंबल भी यूज कर सकते हैं, x यूज कर सकते हैं इसको, है ना. ft ने लिख के we can use it x, है ना. तो ऑफ कोर्स चलो नहीं, अभी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज t के साथ डील कर रहे हैं, तो we have to write. तो if motion has time period t, suppose t के बाद रिपीट कर रहा है वो ऐसा, after t it is repeating, तो ये t हो गया, time is t, then it will repeat itself, फिर से same function हो जाएगा. आप if xt में हम t ऐड कर दे टाइम में, it will become same again, है ना, जैसे sin का फंक्शन होता है. ये जो t के बाद फिर से कैपिटल t के बाद फिर से रिपीट होता है, यहाँ से जैसे रिपीट हो रहा है, it is repeating again after time t, it becomes same value. x की वैल्यू जो t पर है वो t प्लस t पर हो जाएगी फिर से, है ना, कैपिटल t के बाद फिर से वो हो जाती है. तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया ये वाला, और इसमें t की जगह t प्लस कैपिटल t लिखा, है ना. नाउ साइन इज पीरियोडिक फंक्शन विद द पीरियड 2 पाई, 2 के बाद रिपीट होता है, इसको हम 2 पाई भी बोलते हैं. यहाँ पर फिर से ये 0 है तो 2 पाई के बाद फिर से रिपीट होता है, तो इट विल बी सेम. यहाँ पर ओमेगा टी फिर 2 पाई कर दिया, इधर का सेम एज इट इज, अंदर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी. तो अभी ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, साइन भी हट जाएगा, और ये रहेंगे दोनों इक्वल, तो ये भी कैंसिल हो गया. ओमेगा 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी. सेम वी हैव सीन
इन सर्को मोशन में भी तो यही था, सर्को मोशन आल्सो, वहां पे हमने कैसे डिराइव किया था सर्को मोशन में, ओमेगा इज सी सर्को मोशन में ऐसे, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, जब थीटा 2 पाई हो जाता है टाइम पीरियड कैपिटल टी हो जाता है। तो सर्को मोशन में आल्सो वी हैव सीन, but here it is explained differently, but it is same relation which we have seen in circummotion, same in circummotion, in UCM also same था, इसको हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, because 1 by T is called frequency 2 pi nu या 2 pi f, ठीक है। This is just way of explaining the thing, end result is same, so you may not have to explain all this, but you should understand time period को it is periodic motion, every after 2 pi they repeat, sin function 2 pi के बाद repeat होते हैं, and उस duration में t होता है ना, time period is t, ठीक है। तो just for your understanding, nobody is going to ask you these things, ठीक है। तो ओमेगा we are going to use 2 pi by t, वहां से टाइम पीरियड निकालना सीखेंगे, बस ओनली थिंग नेम इज डिफरेंट, देखो ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी हियर, वहां पे एंगुलर स्पीड था सर्को मोशन में, रिलेशंस एंड डिजिट्स आर कमिंग सेम, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखते ये क्वेश्चन देखते, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस वन एंड दिस वन। तो इस फंक्शन को हम क्या साइन या कोसाइन के फंक्शन में ला सकते हैं, वी नो सिंगल साइन फंक्शन will represent that either it should be sine function or cosine function, but it is a combination of two, तो इसको हम सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे, देखो cos को हम लिख सकते हैं sin पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, ठीक है। तो cos को sin में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऑलराइट। तो ये sin ए साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 डिवाइड इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, यहाँ पे दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 इज पाई बाई 4, और यहाँ पे सेकंड टर्म में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है तो ये बचेगा, डिवाइड बाई 2 भी है, होल सब ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, तो ये बचेगा। तो दिस इज cos पाई बाई 2 इज नथिंग बट 1 बाई रूट 2, तो ऊपर 2 ऑलरेडी है, तो 2 बाई रूट 2 विल बी व्हाट, रूट 2 रिमेनिंग, यहाँ पे रूट 2 रिमेनिंग हो जाएगा, तो ये साइन के फंक्शन में आ गया, तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज रिप्रेजेंटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी हो गया, तो टी विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। और इसका एंड फेज एंगल मींस इनिशियल फेज एंगल जो बोला है ना, इनिशियल फेज निकाला है उन्होंने, इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट जो हमने ऊपर लिखा था, दिस वन फेज कांस्टेंट इनिशियल फेज और इक्वल, फेज कांस्टेंट कितना है, ये टर्म को फेज कांस्टेंट बोलते हैं, ये फाई होता है, दिस इज नथिंग बट ए फाई, कितना है माइनस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4 है, इधर से इधर जाएंगे तो माइनस पाई बाई 4 है, अगर इस तरफ से देखेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे इट विल कम 7 पाई बाई 4, ठीक है। एक क्लॉकवाइज माइनस पाई बाई 4 होगा, अदर साइड से 7 पाई बाई 4 आता है, तो दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं, मैथमेटिक्स है इसमें, यू नो बेटर देन मी। और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है, इसको हमने सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट तो किया है, बट इट शुड बी लाइक दिस, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होना चाहिए
ऐसा नहीं हो चाहिए, सब प्लस माइनस समथिंग शुड नॉट बी देयर यहाँ पर. Therefore this function is periodic having the period t is equal to pi by omega. क्योंकि इसको हम 2 पाई को क्या लिखेंगे, देखो पाई बाई ओमेगा कैसे आ रहा है, देखो जस्ट अंडरस्टैंड. यहाँ पे 2 पाई है, सॉरी 2 ओमेगा है, इसको थोड़ी देर के लिए ओमेगा डैश मान लो, टी के कोएफिशिएंट को ओमेगा मानते हैं, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, बट ओमेगा डैश इज नथिंग बट ए 2 पाई. दिस इज सॉरी 2 ओमेगा है, omega dash is nothing but a 2 omega, 2 pi by t, 2 getting cancelled, t is equal to pi by omega, इसीलिए उन्होंने pi by omega, है ना, हाफ टाइम पीरियड हो गया. why it is so, इसमें भी देखो मैथ्स इन्वॉल्व है. देखो साइन का फंक्शन ऐसे होता है ना, और साइन स्क्वायर का फंक्शन जो होगा, साइन की जो वैल्यूज आएंगी स्क्वायर की थोड़ी बढ़ जाएंगी, बट माइनस वैल्यू यहाँ तक तो क्या होता है, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, बट स्क्वायर करने से माइनस वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. तो इट विल स्टार्ट रिपीटिंग इट साइकिल लाइक दिस. साइन का फंक्शन ऐसे, साइन स्क्वायर का फंक्शन ऐसे आ जाएगा, तो वो पहले ही रिपीट करना. टाइम पीरियड इसका टी है, विच इज जनरली 2 पाई बाई ओमेगा होता है, बट वो पहले से ही रिपीट कर रहा है, तो हाफ हो गया, 2 गोस, इट इज रिपीटिंग early. So this is maths is involved, not physics. Then also I am trying my best to explain you the things. एक क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ भी है, SHM नहीं है ये उन्होंने, even if they have written SHM, no it is not. SHM के लिए either sin or cos or combination of this which can be converted into sin or cosine. इसको हम नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, यहाँ पर वो आ रहा है ना. तो it is periodic function and उसका पीरियड हाफ हो गया, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, ऐसे जाएगा ग्राफ. पीरियड इज हाफ, है ना, फ्रीक्वेंसी इज डबल, ऐसे ऐसे था पहले. साइन का फंक्शन ऐसे होता है, इट टेक्स मोर टाइम टू रिपीट इट साइकिल, बट यहाँ पे जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है. टाइम पीरियड इज हाफ, फ्रीक्वेंसी इज डबल. तो इसको अगर नहीं भी समझ में आता, जस्ट यू कैन लीव दिस पार्ट. इसको जो है थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं. देखो नाउ मूविंग ऑन टू द important point, simple harmonic motion and uniform circular motion. ठीक है, तो simple harmonic motion and uniform motion, how they are related to each other. Let's see how they are related. Simple harmonic motion की कंडीशन जो है क्या है कि साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करना चाहिए ना, या कॉस फंक्शन से, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो लेट्स सी हाउ द बोथ आर रिलेटेड और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम. तो देखो एक पार्टिकल लिया हमने यहाँ से, इट इज मूविंग इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा. ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 पे हमने उसको यहाँ पे ना लेके यहाँ पे लिया, t इज इक्वल टू 0. इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, बट हमने t इज इक्वल टू 0 पॉइंट p पे काउंट किया. ऑलराइट, एंड देन it after some time, after t it is reaching to the p dash. This is a point p dash, ये वाला point p dash है. ठीक है, तो let particle perform UCM with the constant angular speed omega. A be the radius, ये उसकी radius है. P the initial position, P dash is the position after time t. यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम t लगा. तो if we remember सर्कुलर मोशन में ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टी को इधर ले आए, थीटा विल बी ओमेगा टी. तो ये एंगल जो थीटा होगा दैट इज नथिंग बट ओमेगा टी. ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक थीटा प्लस फाई, यहाँ पे पहला फाई, दिस इज फाई प्लस ओमेगा टी. अल्टरनेट एंगल, यहाँ से ओरिएंटल परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए इसके ऊपर. दिस इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉप हियर,
परपेंडिकुलर ड्रॉप हियर, ये एंगल भी सेम होगा जितना ये होगा, दैट इज ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, सपोज P डैश n इज द परपेंडिकुलर दिस एंगल। तो ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ओ पी डैश एन, सी इट केयरफुली, दिस एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस 5? साइन ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू क्या होगी? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट इज एक्स, hypotenuse is nothing but a radius is a upon a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x is equal to a sin omega t plus 5। x क्या, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन बोलते हैं। दिस मच इज द प्रोजेक्शन, ये लाइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो जो y एक्सिस है उसमें कितना कंपोनेंट है उसको प्रोजेक्शन बोला जाता है। तो देयरफॉर प्रोजेक्शन इज परफॉर्म, प्रोजेक्शन की इक्वेशन एसएचएम है, दैट्स व्हाट इज रिटन हियर। देखो, वी शो दैट प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ए डायमीटर ऑफ सर्कल follows the simple harmonic motion। प्रोजेक्शन जो है, projection follows the simple harmonic motion, therefore projection follows SHM। यहाँ से प्रोजेक्शन फॉलो किया, प्रोजेक्शन ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो x का रिलेशन ये आया, और इट विल कीप ऑन चेंजिंग लाइक दिस। प्रोजेक्शन का मोमेंट कैसे होगा? ये x विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, यहाँ पे पार्टिकल है तो उसको प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, यहाँ पर है तो यहाँ, तो ऐसे जाके ऐसे आएगा। सर्कुलर मोशन सीम्स टू बी ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे गैलीलियो ने, he observed the moons of Jupiter by his handmade binocular, and he wrote that the moons of the Jupiter are performing oscillatory motion. Actually, he was observing from this side. ये projection क्या था? And ऐसे ऐसे he was feeling moons are going like this, then after few months coming like this, then going like this, then coming like this. If you see from side, what you feel? You will not see this. You will see that ये position. If you are at larger distance and observing, तो ऐसा लगेगा they are going like this, then coming like this, then coming like this, going like this. You will not feel the circummotion from side and seen from the large distance. तो उसने देखा यहाँ पे जुपिटर है, मून्स ऐसे देख रहे थे, ये ठीक है। फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स ऐसे coming this side, this side, this side, this side, this side, and like this ऐसे। तो he wrote they are oscillating about the planet, but they are performing circummotion. उनका प्रोजेक्शन ऑसिलेट कर रहा था, तो प्रोजेक्शन इज एसएचएम। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी था, इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एसएचएम? नो, यूसीएम is not SHM, but it is periodic only. But it is periodic only. Its projection on diameter is SHM. Projection on any diameter is SHM. तो ये नीट का क्वेश्चन था, तो you have to select the right options. You have to write only periodic, not SHM. Projection is performing SHM. ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट और देखते हैं। Just let us see some more point related to this topic only. See, phi is called initial phase. अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, phi is the initial phase. Alright, phi क्या है? Initial phase है। Initially देखो, it is not here. Just let me explain. यहाँ पर नहीं है initially, यहाँ पे होगा तो projection 0 हो जाए, phi will be 0. But we are taken here t is equal to 0. It is okay. It is performing circummotion. You can take anywhere t is equal to 0. You can take t is equal to 0, तो phi 0 होगा। यहाँ पे t is equal to 0 लिया तो phi will be 90 degree. If we take at the top, if t is equal to 0, we take the top. P की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी. So that's what I am going to write.
phi the initial phase or phase constant if t is equal to 0 when the particle is at A. Particle at A, एक मिनट यहाँ पे रुक जाओ. Let me cut it. Yes, let me write again. Let me write again. Everything fresh लिखता हूँ. देखो. यहाँ पे understand this point very carefully. देखो. Number 1. If t is equal to 0 is at point, इसको कुछ नाम दे देते हैं इसको. Shall I give point? A तो अपना एम्पलीट्यूड है, कुछ और नाम दे दो. Give some name B. At point B, then phi will be 0. क्योंकि यहाँ से हम ज्वाइन कर रहे हैं ये लाइन, परपेंडिकुलर डालना है. इट इज नॉट मेकिंग एनी एंगल विद एक्स एक्सिस. ठीक है. phi is 0. इक्वेशन क्या आएगी? x इज इक्वल टू a sin. यहाँ पे देखो इक्वेशन phi 0 हो जाएगा a sin. मतलब जब प्रोजेक्शन मिड पॉइंट पर होता है या पार्टिकल मिड पॉइंट पर, पार्टिकल तो एक्चुअली यहाँ है, उसका प्रोजेक्शन मिड पॉइंट पर है तो साइन ओमेगा टी आ जाता है. और जब एक्सट्रीम पर है पार्टिकल, देखो यहाँ पर, इसको सी ले लो या डी ले लो. सी हमने कोई पॉइंट तो नहीं लिया. ओके, सी ले लेते हैं. इफ सेकंड पॉइंट, इफ टी इज इक्वल टू 0 इज एट पॉइंट सी, तो फाई कितना होगा? देखो, दिस फाई विल बी 90 डिग्री, पाई बाय 2. यहाँ पे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो. यहाँ पे था तो हमने इसको ज्वाइन किया था, यहाँ पे था तो इसको ज्वाइन किया. ऐसा 0 है. यहाँ पे तुम्हारा एंगल फाई है और यहाँ पे फाई विल बी 90. तो फाई इज 90. देन एक्स विल बी a cos ओमेगा टी. एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम पे अगर टाइम 0 लिया जाता है तो कॉस की इक्वेशन आती है. और मिड पॉइंट पर अगर प्रोजेक्शन मिड पॉइंट पर आ रहा है तो साइन की इक्वेशन आती है. तो बोथ द इक्वेशंस आर फॉर द सेम पार्टिकल, सेम एसएचएम. सेम एसएचएम की इक्वेशन साइन भी हो सकती है, कॉस भी हो सकती है. वेयर डू वी टेक टी इज इक्वल टू 0? एक्सट्रीम पॉइंट पे टी 0 लिया तो अब कॉस की इक्वेशन है. ठीक है. तो एनसीईआरटी बुक में उन्होंने ऑल द इक्वेशन दे हैव टेकन कॉस. यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ से कॉस से स्टार्ट किया था. मतलब जब एक्सट्रीम पॉइंट पर टी 0 लिया तो कॉस किया, जब मीन पॉइंट पे टी इज इक्वल टू 0 लिया तब साइन की इक्वेशन आती है. और यहाँ कहीं पे लिया तो प्लस 5 भी आ जाता है. we'll keep it this equation always, है ना. साइन की इक्वेशन से we will solve all the question. but अगर cos की इक्वेशन दी है then only we take cos. otherwise we are just doing everything with the sine equation because they are representing same SHM. और t is equal to 0 is at midpoint और t is equal to 0 extreme point पे लिया तो cos की इक्वेशन होती है. पार्टिकल रिमेन सेम, SHM रिमेन सेम, एवरीथिंग रिमेन सेम. फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, रेडियस भी सेम रहेगा, टाइम पीरियड भी सेम रहेगा. ओनली इक्वेशन में चेंज, डजंट मैटर, डोंट वरी अबाउट दैट. both are representing same SHM. So we will continue sine equations always. उसी से cos भी आ जाता है. तो now you see clear, ये पॉइंट समझ में आ गया. cos इक्वेशन कब होती है SHM की? when t is equal to 0 at taken at extreme point. cos की इक्वेशन will be when t is equal to 0 is taken at extreme point. तो now we'll phi also ideal केस में हम क्या लेंगे? phi also will take this. ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? देखो, suppose if I take like this, actual particle, suppose actual particle itself is performing to and fro motion,
देन वी डोंट हैव टू डू द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन नहीं लेना उसमें, अभी एक्चुअल पार्टिकल ही परफॉर्म कर रहा है, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, और इट इज गोइंग इन दिस वे एंड t is equal to 0 हमने यहाँ पे लिया, देन वी विल हैव द इक्वेशन, दिस इज द मोस्ट आइडियल इक्वेशन, x is equal to a sin omega t। सपोज यहाँ पर है, आई एम गोइंग दिस वे, t is equal to 0 लिया, इसमें प्लस 5 हो जाएगा, कैन यू सी, और यहाँ पर है और t is equal to 0 लिया, तो इट विल कन्वर्ट इनटू cos, 5 की वैल्यू 90 आ जाती है एक्सट्रीम पॉइंट पे, cos में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट आइडियल इक्वेशन ऑफ SHM। इसी से हम सब बाकी टर्म्स रिप्रेजेंट करेंगे, इवन इफ यहाँ पे प्लस है, प्लस 5 है, तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इन एनी अदर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की है, एंड साइन का फंक्शन का कर्व कैसे आता है, ऐसा साइन फंक्शन, यहाँ पे x विल बी a sin ओमेगा t, तो a क्या होगा फिर, लेट मी शो यू, a विल बी एम्पलीट्यूड, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, a is this much, एंड ये क्या है x, which is representing a sin ओमेगा t। e की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी और फिर नीचे आएगी, पाई पर 0 हो जाती है, फिर यहाँ पे पाई नहीं लिखा हमने, यहाँ पे t लिखा है, तो t/2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कैपिटल T लिखना पड़ेगा, ये t/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन। x is the displacement of particle from mean position at t is equal to at time t। x क्या है, displacement of particle from the mean position at time t। तो ये वेरिंग फंक्शन है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग x की वैल्यू आएगी, कभी x की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है इस टाइम पर t1 पर, ये t2 पर x की वैल्यू नेगेटिव है नीचे की तरफ है। y एक्सिस पे हमने x लिया है और x एक्सिस पे टाइम t लिया है, ठीक है, तो ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है अब पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन। एक्चुअल में तो वो इधर होगा ऐसा, बट हमें दिखाना कैसे पड़ता है, ऐसे साइन फंक्शन में ऐसे दिखाना पड़ता है, इट डजंट मीन तो समटाइम्स यू विल बी कंफ्यूज इफ आई आस्क यू इज इट द एक्चुअल पाथ, ये 2 डायमेंशन मोशन है कि 1 डायमेंशन मोशन, इट इज 1 डायमेंशन मोशन, पार्टिकल इज गोइंग दिस साइड then coming this side, going this side, coming, it is performing 1 dimension motion only, but its displacement time graph is in 2 dimensions। all right, these points are very clear। नीचे भी मैंने डायग्राम बनाया, देखो यहाँ पर a is the amplitude, ये प्लस और इधर माइनस, मीन पोजीशन से लेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ऑलराइट, तो डिस्प्लेसमेंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, लेट अस सी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो, इफ t is the time period, then find the time t, small t, from displacement 0 to a। यहाँ से मेन पोजीशन से a तक जाने में कितना टाइम, मिनिमम टाइम है, मिनिमम टाइम, साइक्लिक मोशन है ना, फिर इधर जाके फिर ऐसे भी आएगा वापस, फिर इधर जाके ऐसे आएगा, देयर विल बी मेनी टाइम्स बट मिनिमम टाइम विल बी 1। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, तो हाउ टू गेट दिस पार्ट बताओ, जस्ट थिंक अबाउट दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू गेट, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा बोलो, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T, t/4 या t/6 या t/ something, तो हाउ टू डू दिस, तो अंडरस्टैंड पहले हम लिख लेंगे x की इक्वेशन लिख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख ली, तो गिवन क्या है, 0 से यहाँ तक जाने में x कितना हो जाएगा, x विल बी a/2, कितना डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से यहाँ तक जाने में, x इज इक्वल टू a/2, 0 से a/2 तक जाने में x डिस्प्लेसमेंट विल बी a/2। ये वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व कर लो इक्वेशन, लेट्स डू दैट।
A goes, sorry, 2 will not go, A will go. लेफ्ट साइड में क्या बचा 1/2 साइन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2π/t लिख सकते हैं 1/2 को क्या लिख सकते हैं बोलो साइन की वैल्यू कौन सी 1/2 होती है π/6 साइन 30 को π/6 लिख सकते हैं पाई मींस 180 डिवाइड बाय 6 इज 30 एंड राइट हैंड साइड में 2π/t into t तो साइन हट जाएगा अभी π/6 2π/t into t तो पाई भी कैंसिल हो गया दिस कम्स t इज इक्वल टू कैपिटल T/2 बचा हुआ है ना 12 2 इज रिमेनिंग हियर यहाँ पे देखो ओनली पाई विल गो तो T/12 में हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड कवर करता है वो तो ये ड्यूरेशन जो है ये आ गई तुम्हारी T/12 तो रिमेनिंग हाफ कितने टाइम में कवर हो नहीं अभी ये वाला 0 से A तक जाने में वी कैन से वेरी कॉन्फिडेंट यहाँ पे पुट कर दो A यहाँ पे A आएगा सॉरी A आएगा पूरा तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा यहाँ पर साइन यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 मीन्स π/2 आया तो कितना हो जाएगा T/4 आ जाएगा इफ यू सॉल्व द सेकेंड पार्ट इट विल बी T/4 वैसे भी डायरेक्ट भी बोल सकते देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में T/4 लगता है फिर वापस आने में T/4 लगता है फिर इधर जाने में T/4 फिर वापस आने में T/4 तो टोटल T आ जाएगा ये 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन हो गया T/4 फिर नेक्स्ट 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन T/4 फिर इधर का T/4 तो देख के भी हम बता सकते बट बीच का नहीं बता सकते क्यों बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये T/12 है तो बीच का भी T/12 दोनों ऐड कर दो तो T/6 उससे तो रॉन्ग आ रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए अनइक्वल अभी हमें यहाँ A/2 से A निकलना है A/2 से A निकलना है थर्ड पार्ट में माइनस कर लेंगे ये तुम्हारा T1 था कहाँ गया तो डिफरेंस निकाल लेंगे ये टोटल कितना है T/4 है तो T/4 से और ये T/12 इसका माइनस कर देंगे ये T2 था चलो सिंबल दे दे T1 T2 तो T3 जो है T2 माइनस T1 कर लो T2 जो है मिड पॉइंट से मीन तक था मीन से जो एक्सट्रीम तक था दैट कम्स टू बी T/4 ये मोर है माइनस T/12 दिस विल कम T/6 ठीक है तो देखो यहाँ पे समझो इसको थोड़ा सा फिर से बता रहा हूँ ये तुम्हारा मिड पॉइंट है और ये A है ये मिड पॉइंट में मीन बोलते हैं उसको मीन आर इक्विलिब्रियम पोजीशन और ये एम्पलीट्यूड का आधा है यहाँ से यहाँ तक T/12 लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक T/6 लग रहा है तो ये जो इनका रेशियो कितना होगा रेशियो आएगा 1:2 आएगा ये डबल टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जितना आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में सपोज यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड लगाया तो नेक्स्ट आधा डिस्टेंस कवर करने में 2 सेकंड्स लगेंगे है ना सपोज यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड लगे तो ये 10 सेकंड लगेंगे वाई बिकॉज स्लो डाउन यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होती है फिर धीरे धीरे स्पीड स्लो डाउन हो जाती है एक्सट्रीम तक आने तक बिकॉज फोर्स बढ़ता है ना एक्सीलरेशन बढ़ता जाता है एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट तो रिटार्डेशन बढ़ता चला जाता है तो स्लो डाउन होती है दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए ये इट इज अ क्वेश्चन इटसेल्फ एंड फर्दर कुछ कैलकुलेशन होंगे तो यू कैन जस्ट हैव अ आइडिया एंड डू इट फास्ट ऐसे इधर का भी सेम लगेगा इस तरफ भी T/12 लगेगा और ये रिमेनिंग T/6 लगेगा अगर वो बोलते हैं A/2 से माइनस A/2 तक आने में ऐसा तो इसका डबल कर दो T/12 प्लस T/12 T/6 Shall I ask you one more important question? Okay, वेलोसिटी का है तो वेलोसिटी के उसमें पूछता हूँ मैं तुमसे
आई विल आस्क यू द एवरेज वेलोसिटी आल्सो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, तो हमने ऊपर हेडिंग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन लिखा है, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी वी आर डीलिंग, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट इज डन एंड वेलोसिटी का देखते हैं अभी, then I will ask you the average velocity. Let me write that question somewhere here, otherwise I'll forget. Okay, velocity को some now how do we get the velocity in the SHM? Can we use the equation v is equal to u plus at? Can we use it? V is equal to u plus at? No, we cannot, because acceleration is not constant. यहाँ पर जो है फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, और एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, वो चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, v इज इक्वल टू u प्लस at विल फेल, और यूनिफॉर्म मोशन भी नहीं है। चलो भाई, वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम कर लो तो चलेगा, वो भी नहीं चलेगा, काइनेमेटिक इक्वेशन भी नहीं चलेंगी। तो हाउ डू वी गेट इट? वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशिएट करके डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा वेलोसिटी मिल जाएगा। तो साइन का कॉस हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन जस्ट यू कैन डिवाइड द थिंग्स, v इज इक्वल टू dx बाई dt, x हमारे पास था कितना था, a sin ओमेगा t। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, a अपनी जगह, साइन का कॉस बन गया, कांस्टेंट बाहर आ गया। If you do the differentiation like this, if I ask you d by d dx of sin 2x निकालो, कांस्टेंट बाहर आ गया और sin 2x का cos 2x हो जाएगा। ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में। तो ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमती है ऑब्जेक्ट। सर्को मोशन में हमने देखा था, सर्को मोशन से प्रोजेक्शन डाला था तो ओमेगा वहां पर था, प्रोजेक्ट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से पार्टिकल घूम रहा था। तो साइन का कॉस हो गया, तो एक ये रिलेशन, वेलोसिटी का ये रिलेशन बन गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस का फंक्शन 0 पे मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है, ऐसा इफ टी इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो कॉस ओमेगा टी विल बी 1, तो ए ओमेगा, यहाँ से इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए ओमेगा, ये वैल्यू कितनी होगी, ए ओमेगा। व्हेन यू पुट टी इज इक्वल टू, यहाँ पे टी 0 है, देखो नीचे एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो ओरिजिन पर 0 होगा, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा इनिशियल, एंड ए ओमेगा से स्टार्ट होगा, फिर नीचे माइनस ए ओमेगा तक 0 जाएगा, फिर माइनस ए ओमेगा, एंड देन अगेन इट विल रिपीट लाइक दिस। तो कॉस का फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए, हमने किया था मैथमेटिकल टूल्स में। अभी इसको हम, ये तो टाइम के साथ रिलेशन है v का, x के साथ भी, पोजीशन के साथ भी, यहाँ पर x जो है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर x के साथ कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे। कॉस को हमने रूट a को और कॉस को रूट के अंदर ले लिया, स्क्वायर हो गया, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस को हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया, a को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर a स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज नथिंग बट x, ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, x स्क्वायर को, बिकॉज x बाद a साइन ओमेगा टी, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया तो ये x स्क्वायर हो गया। तो ये रिलेशन आ गया, देखो x के टर्म में, x के टर्म में रिलेशन आ गया, और ये टाइम के टर्म में रिलेशन है। तो टाइम दिया है तभी भी हम निकाल सकते हैं, पोजीशन दी है तभी भी निकाल सकते हैं। बोथ द रिलेशंस आर देयर फॉर वेलोसिटी। तो if I ask you some question based on the velocity, पहले तो मेरा क्वेश्चन यही है, एक मिनट ड्रॉ करना है ग्राफ का, तो वेलोसिटी का टाइम के साथ तो हमने ड्रॉ कर दिया। कैन यू ट्राई दिस, वेलोसिटी का x के साथ ग्राफ, ये फंक्शन तुम्हारे सामने है, इसका ग्राफ ट्राई कर सकते हैं क्या? कैन यू थिंक एंड डू इट, विल डिस्कस टुमारो, नॉट नाउ। तो इस इक्वेशन से
थोड़ा इसको रीअरेंज करने से समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है, स्क्वायर करके रीअरेंज करो तो यू कैन गेट द इक्वेशन, यू कैन गेट द क्लू। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दिस, find the maximum velocity in SHM and where it is obtained। तो वेलोसिटी का x के टर्म में निकालते, देखो ये x जब जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, माइनस वाला टर्म जीरो हो गया, और x जीरो कहाँ पे होता है, मीन पोजीशन पर। तो आंसर इज व्हेन x इज जीरो दैट इज मीन पोजीशन, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, हाउ मच, इसको जीरो पुट कर दो, a बाहर आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ओमेगा a, यू में से माइनस आल्सो अंडर रूट लेंगे, डिपेंड वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, अगर इस तरफ जाएगी तो प्लस ले सकते हैं, इस तरफ जाएगी माइनस, बट मीन पोजीशन पे वन साइड इट विल प्लस, अदर साइड विल बी माइनस, बट मैक्सिमम इतनी हो सकती है, ओमेगा को एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, मीन पोजीशन पे एक्स इज जीरो है ना, तो वहां पे मैक्सिमम होता है, जैसे मास एंड स्प्रिंग सिस्टम है, यू कैन हैव पेंडुलम से अज्यूम कर सकते हो, पेंडुलम को जब यहाँ से छोड़ते हो ऐसे आता है, ओके ये वर्टिकल पोजीशन है, ऐसे यहाँ से शिफ्ट किया तो व्हेन इट कम्स हियर इट इज फास्टेस्ट, मास एंड स्प्रिंग सिस्टम से भी आइडिया लगा सकते हैं, तो मीन पोजीशन इज, सेंट्रल पोजीशन इज द फास्टेस्ट पोजीशन, एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो होता है, एक्सट्रीम पॉइंट पे लिखने की जरूरत नहीं, एक्सट्रीम पॉइंट में एक्स कितना हो जाएगा ए, तो ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी विल बी जीरो, पेंडुलम जब बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है तो वेलोसिटी जीरो होती है, दैट वी आर नॉट राइटिंग। एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन मेरा ये था, देखो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड टू आस्क यू जस्ट नाउ, देखो वापस वही बना लेते हैं, ये एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, सपोज मास एंड स्प्रिंग सिस्टम में मास ऑसिलेट कर रहा है, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है ना, मेरा क्वेश्चन ये है, देखो इफ एम्पलीट्यूड इज ए, magnitude of amplitude is a and time period is t, then find average speed in one time period, find average speed in one time period, quick answer। देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, वन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इट विल गो हियर, ए हो गया, फिर वापस आएगा, फिर ए, फिर इधर आएगा, फिर ए, फिर इधर आएगा, कितना हो गया 4a अपॉन टी, दैट्स ऑल। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, इट विल कम टू इट्स ओन पोजीशन, यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से ले सकते हैं, ऐसे आके फिर यहाँ, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर आल्सो, कहीं से भी लो, इट विल कम बैक टू सेम पोजीशन, बट हाफ साइकिल के लिए नहीं बोल सकते हम, हाफ साइकिल में क्या होगा, हमें इनिशियल पोजीशन पता होनी चाहिए, इनिशियल अगर यहाँ पर है इट विल कवर 2a डिस्टेंस और t/2 टाइम लेगा, इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है तो डिस्टेंस ऑफ कोर्स, इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है तो तब हम नहीं बोल सकते, बिकॉज स्पीड इज नॉट यूनिफॉर्म, तो हाफ साइकिल के लिए हम कुछ बोल नहीं सकते, बट फुल साइकिल के लिए भी कॉन्फिडेंटली वी कैन से दीज आर द आंसर्स। डन, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट्स, ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने वन डायमेंशन मोशन में सीखा था, उस पे बेस क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो
सम मोर पॉइंट्स टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लेते हैं अभी। देखो we'll take the textbook questions। 14th क्वेश्चन देखो, पिस्टन जो है, piston in the cylinder head of the locomotive has the stroke twice the amplitude of stroke, मतलब ये पिस्टन यहाँ से लेकर ऐसा सिलेंडर के अंदर यहाँ तक आता है, फिर वापस ऐसे आता है, तो जो उसका स्ट्रोक होता है ये एम्पलीट्यूड का डबल होता है। दे हैव गिवन यू बिकॉज यू डोंट हैव द टेक्निकल आइडिया, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 1 मीटर है, तो एम्पलीट्यूड विल बी हाफ मीटर, डिवाइड बाय 2 कर देंगे 0.5 मीटर, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है 20 रेडियन पर मिनट। तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? मैक्सिमम स्पीड V max is A omega or omega A, that is 0.5 into 200, तो कितना आ रहा है ये 100 मीटर पर मिनट। उन्होंने यूनिट चेंज नहीं की है, पर सेकंड नहीं लिखा, बिकॉज आंसर इज गिवन इन मिनट, यू कैन राइट इट इन मिनट बिकॉज ये इज द आंसर गिवन, so we are also not changing। सेकंड्स में लिखना है तो नीचे 60 आ जाएगा, एंड 5/3 है ना 1.67 कुछ हो जाएगा। वी आर नॉट चेंजिंग द वे आंसर इज गिवन, वी आर फॉलोइंग इट। ठीक, क्लियर? इट वाज V max is nothing but A omega। जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वही मैक्सिमम स्पीड होगी, मतलब मैक्सिमम स्पीड में हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली। मैक्सिमम वेलोसिटी विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है, वी हैव टू डिसाइड देयर। ऑलराइट, some more questions are there, you have to remember this formula। now acceleration का निकाल लेते हैं ना। acceleration कैसे डिफाइन करते हैं? इसमें acceleration जो है वेलोसिटी के फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या था वेलोसिटी का फंक्शन? A ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है, cos का माइनस साइन होता है, तो माइनस हो गया, ओमेगा ओमेगा फिर से एक बार और बाहर आ जाएगा, तो माइनस भी हो गया, ऑलरेडी एक ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन साइन एंड कांस्टेंट विल कम आउट, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एंड कांस्टेंट विल कम आउट, तो ये रिलेशन आ गया। देखो, तो A का रिलेशन माइनस A ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, साइन फंक्शन तो है लेकिन माइनस लगा हुआ है, तो इधर नीचे से स्टार्ट होगा, वो 0 से स्टार्ट होगा, t इक्वल टू 0, A विल बी 0, बट उसके बाद जैसे टाइम बढ़ेगा तो माइनस है, इट विल गो डाउन एंड देन गो अप, साइन का रिवर्स फंक्शन हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम? माइनस A ओमेगा स्क्वायर, और ये प्लस, जब साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन की वैल्यू -1 हो जाएगी, ये ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। जो कोएफिशिएंट होता है वही मैक्सिमम वैल्यू होती है, बिकॉज साइन एंड कोसाइन की वैल्यू मैक्सिमम +-1 हो सकती है। ऑलराइट, this value will be A omega square। Yeah। तो अदर रिलेशन लिखते, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, A sin ओमेगा t कैन बी रिटन एज x, यहाँ पे लिख दिया हमने। ओके, A sin ओमेगा t को अलग कर दिया, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, तो x के टर्म में ये आ गया, और ये साइन का, इसका ग्राफ तो हमने देखा ही था, x का कैसा आएगा ग्राफ। चलो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, A एंड x के बीच में, A हियर, x हियर, माइनस है, और लीनियर रिलेशन ये तो कांस्टेंट है, तो लीनियर रिलेशन, तो जैसा फोर्स एंड एक्स का था वैसे एक्सीलरेशन एंड एक्स का है। देखो, दिस इज फॉर वेलोसिटी का मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है, एक्सीलरेशन का यहाँ ड्रॉ कर दिया, बिकॉज इट इज सिमिलर टू द एफएक्स ग्राफ। एफएक्स का भी ऊपर जो था वैसा ही ये ग्राफ है, दोनों के बीच में वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विद एक्स, अदरवाइज और ये भी ग्राफ है, अदरवाइज पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल, इट इज मूविंग इन द वन डायमेंशन मोशन, ऐसे ऐसे कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन उसका एक्सीलरेशन एंड पोजीशन ग्राफ ऐसा आता है, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है वो, इट इज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्सिस। जैसे ये इसका केस ले लेते हैं, ये मास एंड स्प्रिंग सिस्टम,
इसको पुल करके छोड़ दो, इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, और उसके ग्राफ चेंज होते जाएंगे, टाइम के साथ कुछ और आएगा, पोजीशन के साथ और आएगा, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट का कुछ और आएगा. So they depend upon their relation. Now, for maximum acceleration, x is equal to a, extreme point पर x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? a हो सकती है. That will be on one extreme or other extreme. तो ये आ गया रिलेशन x का. मतलब इसको कैसे बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट की वैल्यू है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा रिलेशन है. तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, आगे माइनस होना चाहिए. दिस इज द रिलेशन. ये भी एसएचएम को ऐसा कुछ होगा तो हम बोल सकते हैं कि एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकता है. और मैग्नीट्यूड जब न्यूमेरिकल करते हैं जनरली मैग्नीट्यूड में लिखते हैं. मैक्सिमम यहाँ पे मैक्स आ जाएगा, ए मैक्स, ब्लू से लिखता हूँ. ए मैक्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स, और अदरवाइज एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, सॉरी अदरवाइज एक्स रहेगा, माइनस साइन भी है ओरिजिनली, मैग्नीट्यूड में माइनस हटा देंगे. You have to remember all these formulas, otherwise इसके न्यूमेरिकल्स में फंस जाएंगे. नॉट यूनिफॉर्म है, यहाँ से बोल सकते हो नॉट यूनिफॉर्म, बोल सकते हैं कि नहीं एक्स चेंज होगा तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म. तो उसके लिए फिर हमें डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ी, इसलिए हमने ऐसे निकाले. वेलोसिटी का भी हमने डिफरेंशिएट करके निकाल लिया है, बट एक फार्मूला बन गया तो उसको यूज कर सकते हैं फर्दर. ठीक है, नोट देखते हैं इसका, एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट है. देखो ये वाली रिलेशन को हमने यहाँ लिख दिया, और क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टाइम, और ये एज इट इज. तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. इसको कभी कभी नाम देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है, ये डिफरेंशियल के सेकंड डेरिवेटिव है, ये सेम थिंग है, ये सेम थिंग है. देखो ओनली थिंग एक्सेलरेशन को हमने डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख दिया, क्योंकि यहाँ भी देखो, यहाँ भी एक एक्स दिख रहा है और यहाँ भी एक्स दिख रहा है. तो इस टाइप की फॉर्म्स मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाती है, जो कि तुम्हें 12th में पढ़ाया जाएगा. डिफरेंशियल कैलकुलस में लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आती है, मैक्सिमम मिनिमम भी आता है. This is all about acceleration, graphs and maximum acceleration and differential equation and so on. वेरिएबल है ये सब, टाइम से भी देखो चेंज हो रहा है, टाइम के साथ भी एक्सेलरेशन लगातार चेंज हो रहा है, पोजीशन के साथ भी चेंज हो रहा है. कहाँ पर मैक्सिमम है, तो अच्छा ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा, एट एक्सट्रीम. मिनिमम कहाँ पर होगा, जब एक्स 0 हो जाए, एक्स 0 हो गया, मिनिमम मैग्नीट्यूड हो जाएगा उसका मीन पोजीशन पर. मीन पोजीशन पे एक्स 0 होता है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी 0 हो जाता है ऑब्जेक्ट में. तो जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मिनिमम है, एंड वाइस वर्सा. एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या है, वेलोसिटी 0 हो जाती है इंस्टेंटेनियसली, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है वहां पर. पेंडुलम का ही सोच लो, पेंडुलम का इमेजिन कर लो, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है. मीन पोजीशन पे क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है. मास एंड स्प्रिंग सिस्टम का सोच लो. ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है. देखो ये क्वेश्चन भी है, देखो एनसीईआरटी बुक में. क्वेश्चन नंबर 6, which of the following relationship between acceleration a and displacement x of the particle involve simple harmonic motion? A, B, C, D. Which one is involving simple harmonic motion? A is right or something else is right? बोलो आंसर जल्दी से, किसके साथ मैच हो रहा है?
एक्सेलरेशन की कंडीशन क्या है, ये वाली है, देखो एक्सेलरेशन इज माइनस कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा इसमें दिख रहा है माइनस, किसमें दिख रहा है, इसमें कांस्टेंट दिख रहा है, यस। डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, ये स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज रॉन्ग, ओनली सी इज राइट। So, but Only A C. can also be magnitude of display. नो मैग्नीट्यूड ऑफ, लेकिन ये अच्छा, ये जो है कैन यू से कि ये एसएचएम हो सकती है। एसएचएम में क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, वापस आने की टेंडेंसी होनी चाहिए। ये तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, एक्स की वैल्यू 1 कर दो तो एक्सेलरेशन 0.7 है, एक्स की वैल्यू 2 कर दो 1.4 है, तो इट विल नॉट कम बैक। पार्टिकल को पुश कर दो इस एक्सेलरेशन से, इट विल कीप ऑन गोइंग अवे एंड अवे, इट विल नॉट बी हैविंग रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स में जब माइनस होगा तभी वापस आएगा पार्टिकल, ऐसे जाके वापस भी तो आना चाहिए एसएचएम करने के लिए, ऑसिलेशन करना चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन। इसमें टू एंड फ्रो मोशन विल नॉट बी देयर। यू हैव टू बी डेड राइट। जब चारों ऑप्शन दिए माइनस प्लस, माइनस का भी दिया है प्लस का भी, यू हैव टू सेलेक्ट माइनस। Okay, sir. रिस्टोरिंग फोर्स विल बी देयर, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन होना चाहिए, वापस लाने की टेंडेंसी होनी चाहिए, माइनस साइन इंडिकेट दैट, ठीक है। तो इट इज नॉट ओनली सी इज एसएचएम आउट ऑफ दिस 4। कैन यू रिप्लाई सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। व्हाट इज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो एसएचएम का मोशन कर रहा है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके इसको कंपेयर कर लो, a इज इक्वल टू -10x कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रिलेशन विथ a इज इक्वल टू -ω²x, ठीक है। देयरफॉर ω² इज 10, देयरफॉर ω इज प्लस माइनस मैग्नीट, इसमें 10 ही लिखते हैं, इसमें प्लस लिखते हैं, 10 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी, चलो मैग्नीट्यूड नहीं भी लिखा तो फ्रीक्वेंसी प्लस ही लिखी जाती है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट में आज से जेई नीट में आया था। टाइम पीरियड पूछा था, फ्रीक्वेंसी पूछी थी, ओमेगा को 2πf लिख के फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, 2π नीचे आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हर्ट्ज में। टाइम पीरियड निकालना है तो ओमेगा को 2π/t लिख के टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, फाइंड आउट टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा निकलने के बाद वी कैन फाइंड आउट एनीथिंग। ये भी देखो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन देते हैं, इसमें दिए 2 पॉइंट्स हैं, पार्टिकल इज in the linear simple harmonic motion between the 2 points A and B 10 centimeter apart, take the direction from A to B positive, A से B की तरफ positive लेना है डायरेक्शन। give the sign of velocity, acceleration and force when the particle is at A। पार्टिकल यहाँ पर है, अभी कहाँ पर है, here। इसका बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, क्विक आंसर दो। where it has gone, particle is disappeared, फिर से लिखते हैं इसको, एक आंसर लिखना है, velocity at A will be, एक्सट्रीम पॉइंट पे 0 होगी, एक्सेलरेशन एट A, Maximum. हाँ मीन पोजीशन यहाँ पे, तो मीन पोजीशन की तरफ होता है हमेशा एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो एक्सेलरेशन अपोजिट होगा। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऐसे लिख लो हिंट के लिए, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, एक्सेलरेशन एंड फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। एक्सेलरेशन किधर होगा, इस तरफ, वही पॉजिटिव डायरेक्शन है, टुवर्ड्स राइट होगा प्लस, और क्या लिखना है, फोर्स, फोर्स एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं।
F इज इक्वल टू ma होता है ना, अगर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है तो फोर्स भी टुवर्ड्स राइट होगा. अदर पार्ट्स यू डू योरसेल्फ, बाकी पार्ट्स खुद आनी चाहिए तुम्हें. इफ यू कैन डू इट वन, यू कैन डू अदर पार्ट्स. आंसर दिए हुए सबके, यू कैन मैच द आंसर्स. पहले का क्या दिया हुआ है? 0 प्लस प्लस. बाकी आंसर भी यू कैन जस्ट फर्स्ट ट्राई देन यू मैच इट. अदरवाइज डायरेक्ट देखने से मतलब नहीं. अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट लर्न. ठीक है. So this was the question number 5. We'll do further. देखो, if maximum velocity and maximum acceleration in SHM is 157 centimeter and 100 centimeter square, 157 centimeter per second. Can you read it properly? 157 समझ में आ रहा है? और this is 100 centimeter per second square. चलो I write again 157 को ठीक से लिख दूं. Find the time period. So you do it at home and solve करके भेजो इसको. Maximum velocity, maximum acceleration के रिलेशन हमने पढ़े थे. So use them and find the time period. It is important question. ठीक है. तो इसको सॉल्व करके भेजो. Tomorrow we'll discuss. Tomorrow also we will at the same time 1:15 sharp से and 2:40 तक 10 मिनट एक्स्ट्रा लेना है क्लास में, हमने बोला है, because we have to cover a lot. देखो ये क्वेश्चन भी देखो एनसीईआरटी बुक का. क्वेश्चन नंबर 24. बॉडी describe simple harmonic motion with amplitude of 5 and period of 0.2 second. Amplitude 5 सेंटीमीटर है, 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. टाइम पीरियड 0.2 है. Find the acceleration and velocity of the body when displacement is 5. तो एक्सेलरेशन निकालना है. एक्सेलरेशन का फार्मूला ओमेगा स्क्वायर एक्स. अच्छा ए तो नहीं आएगा यहाँ पे, ए कब आता है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन में. और इसमें अदरवाइज एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक्स आता है. ठीक है. मैक्सिमम एक्सेलरेशन में तो ये एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओमेगा कैसे निकालेंगे? 2π/t से निकालेंगे. टी दिया है 0.2 तो ये 10π आ जाएगा. यहाँ पुट कर दो माइनस 10π का स्क्वायर. एक्स कितना है? 5 × 10⁻². इफ वी सॉल्व इट 100 तो ये 100 इसके साथ चला जाएगा. -5π² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So let's see the answer. फर्स्ट आंसर सही है, -5 है. और वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर इस पॉइंट पर? वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट पार्ट. वी विल बी एम्पलीट्यूड 5 दिया है और 5 सेकेंड पर कैलकुलेट करने से 0 आ जाएगा. ओके चलो कैलकुलेट करते हैं. ओमेगा √(a² - x², ओमेगा √5 × 10⁻² स्क्वायर -5 × 10⁻² स्क्वायर. तो 0 हो जाएगा. एक्सट्रीम पॉइंट पर है वो. कैन यू डू द अदर पार्ट्स? इसका आंसर बोल सकते हैं क्या? देखो ये मेन क्वेश्चन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. ये 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन. और वेलोसिटी में यहाँ से निकाल लो, फार्मूले में वैल्यू पुट करके x 0 कर दो तो ये ओमेगा a² आ जाएगा. ओमेगा a आ जाएगा, a² बाहर. तो दिस कैन बी डन. रिमेनिंग पार्ट्स यू कैन डू इट इजीली, है ना. ये सॉल्व एग्जांपल भी देखते हैं. इन्होंने कॉस के टर्म में दिया हुआ है. इसको देखो. Doesn't matter. I told you whether cos equation or sin equation.
आंसर विल नॉट चेंज, स्पीड विल नॉट चेंज, एक्सेलरेशन विल नॉट चेंज, डिस्प्लेसमेंट है ना, जो वैल्यू है पुट कर दो सीधा। अभी देखो एक्स एक्स दिया हुआ है तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, बोल रहा है कि t 1.5 पर डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो t वैल्यू पर सीधे पुट कर दो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, दिस 1.5 into 2 3 पाई cos 3 पाई प्लस पाई बाय 4, ये निकालना आता तुम लोगों को, तो ये आ जाएगा, बाहर तो 5 रहेगा, एज इट इज 5 तो रहेगा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos 3 पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई के बाद पार्टिकल अपनी जगह वापस आ जाता है, 2 पाई के बाद इसको हम 2 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं, 2 पाई के बाद वो अपनी इनिशियल पॉइंट पे आता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, 2 पाई इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, बिकॉज इट कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट एक्स एक्सिस पे वापस यहाँ पे आ जाता है, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, तो पाई प्लस पाई बाय 4 बचा, पाई कॉस पाई प्लस पाई बाय 4 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का कॉस ही रहेगा बट माइनस आएगा, माइनस पाई बाय 4, cos minus pi by 4 is minus 1 by 2, minus 1 by root 2, सॉरी, minus 1 by root 2 को रेशनलाइज करके देखो, root 2 by root 2, तो ये root 2 1.414 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो ये 0.7 सॉरी 0.707 आता है, दैट्स व्हाट दे हैव रिटन हियर, और 5 तो बाहर है ही, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आता है, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं लिख दूं यहाँ पर, इट विल बी cos पाई प्लस पाई बाय 4, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, माइनस हो जाता है, cos पाई बाय 4 बचा, और माइनस 1 बाय रूट 2, और हमेशा 1 बाय रूट 2 की वैल्यू याद रखो, रैशनलाइज करने के बाद 0.707 आती है, एसी का चैप्टर पढ़ेंगे वहां भी हम ये यूज करते हैं 0.707, तो इसमें बस वही, अभी डिफरेंशिएट कर दो, अभी वेलोसिटी निकाल स्पीड निकालनी है तो इसको डिफरेंशिएशन किया गया, देखो dx by dt, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, माइनस आगे आ गया, और कांस्टेंट जो 3 पाई है वो बाहर, सॉरी कहाँ चला गया कांस्टेंट, t का कोएफिशिएंट जो है वो 2 पाई बाहर आ जाएगा, और ये कांस्टेंट तो 0 ये 2 पाई बाहर आ जाएगा, देखो फिर से सुनो, ये डी डी एक्स ऑफ फंक्शन कॉस का था, कॉस ऐसे होगा, कॉस 2x प्लस 3 ले लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x प्लस 3, चेन रूल से क्या करना पड़ता है, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, 2x का 2 रह जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, तो यही किया, जो 2 पाई जो लगा हुआ है t के साथ वो बाहर आ गया, t इज द वेरिएबल हियर, x की जगह t है तो t के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ये बाहर भी आ गया, देखो 2 पाई, यहाँ पर देखो cos का साइन भी हो गया माइनस साइन, फिर बाद में t की वैल्यू पुट करो, ये तो फिर से वही, ये वैसे ही आ रही, देखो ये साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेम वैल्यू आएगी, 45 आ रहा है ना, साइन पाई बाय 4 की सेम वैल्यू आएगी, बट नेगेटिव है, नेगेटिव इसमें भी नेगेटिव आएगी, सेम वैल्यू आएगी, तो ये नेगेटिव नेगेटिव लास्ट यहाँ पे नेगेटिव है, इसका भी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो ये थोड़ा मैथ्स ही है इसमें, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुम्हें बेस्ट पॉसिबल वे से, अदरवाइज यू मे नो बेटर देन दिस, यू कैन डू इट विद दैट, कुछ और तरीका है ये सब वैल्यू लिखने का, इजी मेथड है, cos 2 पाई cos 3 पाई प्लस पाई बाय 4 का, या sin 3 पाई प्लस पाई बाय 4 का, anyway it's up to you, you can just see things, तो ये सॉल्व एग्जांपल है, you should know how it is solved, I will explain you, ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर में या अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में, जब हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे ना, दिस इक्वेशन विल बी रिपीट, देखो ये जो एम्पलीट्यूड होता है और ये डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है, ऑसिलेटिंग बॉडी की पोजीशन है, एसी के चैप्टर में ये करंट हो जाएगा,
करंट, ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स विल रिप्रेजेंट करंट एंड वोल्टेज. तो डिस्प्लेसमेंट डजंट मीन कि एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स है. दिस डिस्प्लेसमेंट कैन बी द करंट्स, वोल्टेज, चार्जेस, ये सब 12th में हम यूज करेंगे. वो भी उनकी इक्वेशन भी साइन और कोसाइन से दी जाती है. मेथड ऑफ सॉल्विंग रिमेन्स सेम. जैसे यहाँ पे देखो, इफ आई आस्क यू, ये एसएचएम है, दिस ऑल 3 आर एसएचएम, है ना. तो इसमें तुम्हें एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी निकालनी है. कैन यू ट्राई? इसमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पहला मैं कर दूं. x इज इक्वल टू 5 sin 3 140. इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? इफ वी कंपेयर विथ द स्टैंडर्ड रिजल्ट which is x is equal to a sin omega t. a तो तुम्हारा therefore okay, a is equal to 5 आ गया. a is equal to coming 5. okay, a is equal to 5 आ गया ना. और ओमेगा कितना आएगा? 314. ओमेगा इस कंपेयर करने से इक्वेट कर देंगे. तो यहाँ पर एक सीरी keep quiet So long. till I give you the next order. Okay. ये हो गया इसके बराबर साइन डेज एंड ओमेगा 3.14 t एज इट इज. ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं. ओमेगा इज हाउ मच? 314. ठीक है, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314. और पाई जो होता है 3.14 होता है. ये 100 टाइम्स हो जाएगा इसका. और f will be 100/2, that is 50 hertz. इंडियन सप्लाई जो है, इलेक्ट्रिक सप्लाई इज एट 50 हर्ट्ज. वहां पे जो जनरेटर है 50 साइकिल्स पर सेकंड से रोटेट करता है. उसके जो आर्मेचर होती है, इट इज रोटेटिंग एट 50 रोटेशंस पर सेकंड और 3000 रोटेशंस पर मिनट. क्वाइट ए फास्ट. Therefore, its frequency is 50 hertz. Now you can do these questions. ये और ये भी ट्राई कर सकते हैं. इसमें बीच में प्लस है, प्लस माइनस दोनों से सेम आंसर आ सकता है. ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस? ऐसी ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट करे, ऐसी तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी ना. एक साइन का फंक्शन था, एक कॉस का फंक्शन था. दे वर रिप्रेजेंटिंग द एसएचएम. बट व्हाट अबाउट दिस? प्रोडक्ट वाला भी करेगा क्या? तो जस्ट use the trigonometrical formulas. You will come to know this can also be converted into single sine function. तो ये ट्राई करो ये दोनों. I will tell you tomorrow and try to solve it. If you are able to solve it, send it to me. We'll discuss these questions tomorrow. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. ये भी ऐसे इस सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ये. और इसको भी कर सकते कन्वर्ट सिंगल साइन फंक्शन में, या कोसाइन फंक्शन में भी कन्वर्ट कैसे चलेगा. फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. देखो, प्रीवियसली हमने देखा था दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द एसएचएम एंड एफ इज इक्वल टू एम ए आल्सो. न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? एफ इज इक्वल टू एम ए. और ए की वैल्यू अभी हमने निकाली थी ओमेगा स्क्वायर एक्स. ऊपर ए का एक्सेशन का डेरिवेशन किया था. ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो. न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए. और इसको जो है ये जो है हमने एक्सेलरेशन पुट किया एसएचएम का, तो दिस शुड रिप्रेजेंट एसएचएम. तो ये देखो, ये दोनों ये कांस्टेंट है एम ओमेगा स्क्वायर, है ना. तो इसको एक दूसरा कांस्टेंट ले लिया, जिसको हम लोग स्प्रिंग या फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं. तो हियर ओमेगा
m omega square has been taken k, and k is another constant. K is another constant called force और स्प्रिंग कांस्टेंट. उन दोनों कांस्टेंट को सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लिया k. ठीक है, तो यहाँ से एक और रिलेशन मिल गया. देखो अभी k की वैल्यू ओमेगा m स्क्वायर भी होती है, फोर्स कांस्टेंट की या स्प्रिंग कांस्टेंट की. ये हम यूज कर सकते हैं, आगे हमें यूज भी करने पड़ेंगे. k को रिप्लेस करना है. यहाँ से ओमेगा की, देखो ओमेगा का रिलेशन एक और मिल गया हमें, k बाई m. यहाँ से m को इधर भेज दो, अंडर रूट ले लो. ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो हमने पहले भी लिखा है. दिस इज कॉल्ड फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. हमने डायरेक्ट लिखा था वहां पे. देखो वहां पे पीछे हमने SHM को एक्सप्लेन करने के लिए इसकी हेल्प ली थी वहां पर डायरेक्ट. तो इट कम्स फ्रॉम हियर. So now in place of force law in simple harmonic motion, so in place of writing direct, you derive it. यहाँ से derive कर लो और इतना लिख के छोड़ दो. लास्ट स्टेप की जरूरत नहीं. You don't have to write last step. This much is enough. ठीक है. K is called force constant or spring constant. Oscillation due to spring. Now suppose हमने मास को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया और इसको पुल करके छोड़ दिया ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा. यहाँ तक खींचो इसको, स्प्रिंग विल पुल इट बैक. मीन पोजीशन पे फोर्स 0 हो जाएगा, बट इनर्शिया से इट विल कम हियर एंड ऑसिलेट. So it will oscillate between these 2 points. अच्छा मीन, ओके, मीन पोजीशन यहाँ पर थी इनिशियली. इट वाज हियर, इट हैज बीन पुल्ड एंड लेफ्ट. अभी रिटर्न जा रहा है वो इधर. इट इज रिटर्निंग. मीन पोजीशन ये है. ठीक है, तो अभी हमने जो ऊपर जो सीखा था वो सब कॉपी कर लो. फोर्स लाइन, स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ तक पूरा एज इट इज. एज इट इज, नो प्रॉब्लम हियर. Copy it from there, and omega is now 2 pi by t. In any case we have to find out omega. SHM का derivation करना है टाइम पीरियड का. Let it be any case. So you get the relation of acceleration और फोर्स का रिलेशन निकाल लो या एक्सेलरेशन का निकाल लो. उसमें जो x का कोएफिशिएंट होगा, फोर्स का रिलेशन निकाला तो x का कोएफिशिएंट m ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का जो x का कोएफिशिएंट होगा वो डायरेक्टली ओमेगा स्क्वायर होगा. तो यहाँ पर ओमेगा मिल गया हमें. ओमेगा इज 2 पाई बाई टी. ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी लिखी और क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लिया, तो ये ऐसा आ गया. और फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल होता है. टर्म्स जो है न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर में चले जाएंगे एंड डिनोमिनेटर वाले न्यूमरेटर में. यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट ऑफ जी है. देखो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी. अगर तुम इसको फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में छोड़ भी दो तभी भी टाइम पीरियड सेम रहेगा. मून पर लेके जाओ तभी भी टाइम पीरियड सेम रहेगा. टाइम पीरियड विल रिमेन सेम इन फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट. therefore time period and frequency will remain same in freely falling lift and at moon also. Moon पर g change हो जाएगा, but if you take the same system at moon, it will give you more same time period. वहां पे तो एटमॉस्फेयर भी नहीं है. इट इज मोस्ट आइडियल केसेस है ना. अर्थ पे थोड़ा एटमॉस्फेयर है, अर्थ में थोड़ा क्या पूरा एटमॉस्फेयर है,
तो डिसिपेटिंग फोर्सेस है, तो उसका डैम्पिंग होने लगती है ऑसिलेशन की धीरे धीरे, तो टाइम पीरियड बढ़ने लगता है उससे डैम्पिंग से। स्लो मून पे आइडियल सिचुएशंस है, नो फ्रिक्शन, नो डिसिपेटिंग फोर्सेस, बट जी पर डिपेंड नहीं करता, डू नॉट चेंज। इसीलिए वेदर यू होल्ड इट वर्टिकल, अच्छा इसमें देखो हॉरिजॉन्टल का हमने किया, बट वर्टिकल में भी सेम रहेगा टाइम पीरियड। उसका डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आई कैन शो यू नाउ, बट उसमें वी विल सेव द टाइम, टाइम कम है तो आई कैन शो यू वर्टिकल आल्सो। वर्टिकल में क्या करो, चलो यू कैन ट्राई, इसको छोड़ दो, ये यहाँ पे सपोज था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा mg, ऊपर f x सॉरी kx, तो kx इज इक्वल टू mg, तो x इज इक्वल टू mg बाई k हो गया। फिर इसका थोड़ा एक्स्ट्रा खींचो x डैश, है ना, फिर आप ऑसिलेट कराओ x डैश से, जब एक्स्ट्रा खींचेंगे तो x प्लस एक्स इंटू के इज इक्वल टू, नहीं एक्सलेशन करेगा वापस जाएगा ना, तो एक्स्ट्रा जो पुल किया था उससे फोर्स ज्यादा हो जाएगा, x प्लस एक्स डैश सॉरी एक्स डैश इंटू के माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो x इंटू के कितना होता है, वो तो एम जी ही था, प्लस एक्स डैश इंटू के माइनस एम जी इज इक्वल टू एम एम जी कैंसिल हो गया, और ए एम ए इज इक्वल टू एक्स डैश इंटू के, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस भी लगाना पड़ता है, तो ए इज इक्वल टू के बाई एम आ जाएगा एक्स डैश माइनस, ये ओमेगा स्क्वायर आता तो सेम रिजल्ट आता है इफ यू ऑसिलेट इन वर्टिकल पोजीशन। सिंस इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बुक, तो मैं डेरिवेशन इसका नहीं कर रहा हूँ। एंड नॉट ओनली वर्टिकल, इंक्लाइंड में भी सेम रिजल्ट देना चाहिए, जब डिपेंडेंट नहीं कर रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और लिखते जाओ दिस और दिस और दिस, इसमें तुम ब्लॉक को ऊपर रखो या नीचे रखो, इन्वर्ट भी कर सकते, और दिस आल्सो, चलो ऐसे भी सभी में सेम रिजल्ट आएगा जो कि हमने नीचे लिखा हुआ है। We just find up within 1 minute, ठीक है, ये समझ में आ गया, ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। So you have to remember time relation because they are used in the numericals. So it can be horizontal oscillation of mass and spring, vertical, inclined, upside down, सबके लिए सेम है because independent of G है। Alright. तो यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ, सॉल्व एग्जांपल यू कैन गो थ्रू दिस 14.8 इसका ही सॉल्व एग्जांपल है, देखो इट कैन बी इजीली डन। टाइम पीरियड निकलना है, एम भी दिया के भी दिया, एम बाई के होता है, पुट कर दो यहाँ पर, इतना आ गया। और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी, ये सब नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैक्सिमम वेलोसिटी इज ए ओमेगा, ओमेगा इज रूट के बाई एम, है ना, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ये भी याद रखना पड़ेगा। तो ओमेगा इज रूट के बाई एम, ऊपर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और फिर भी नहीं याद आता तो टाइम पीरियड से निकाल लो उसको, टाइम पीरियड से ओमेगा निकाल लो यहाँ से, ठीक है। तो ए दिया हुआ है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑलरेडी हमने बहुत बार कर लिया, तो ये हो जाएगा। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी देखो, ये मैक्सिमम, इसकी जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट नीडेड। once maximum acceleration is asked, you focus on the maximum acceleration, ओमेगा स्क्वायर है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाला उन्होंने, माइनस भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, यहाँ भी माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 10, मैक्सिमम वेलोसिटी इज 1, और टाइम पीरियड जो अभी हमने जस्ट नाउ पढ़ा वो ये, ठीक है। एंड हियर आल्सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्टली। So this is the question number 14.8. That's all. We'll continue tomorrow from here.
Just keep remembering the formula. Acceleration का, velocity का, ये आगे सब बार बार वही आ रहा है. Nothing else. Anything you want to ask? No? Shall I wind up now? Yes. Okay, thank you then. Tomorrow same time. All right. Bye. Math students to Just a stay minute. back. Yes, sir. Okay, man. Can I leave?